So hello everyone once again. I hope you all are good and you all are safe wherever you people are. Is it so? Okay, chalo. So let's continue. So in the last class we were discussing the method of fractional distillation. Is it so? The method of fractional distillation. So we saw some examples that we can separate the different products of the petroleum by the method of fractional distillation, and we can separate the different components of air by the process of fractional distillation. Now I thought that let's discuss that how will we separate the components of air by the method of fractional distillation. आ जाओ तब देखते हैं उसको, है ना. So we are going to separate the, suppose we know that the major gases which are in your atmosphere is oxygen, argon and nitrogen. Is it so? And the percentage are 20.9%. Is it so? 0.9% and this is 78.1%. है ना. हमारे एटमॉस्फेयर में 20.9% ऑक्सीजन है, 0.9% आर्गन है, 78.1% नाइट्रोजन है. अभी द क्वेश्चन इज कि सपोज करो मैं बोलता हूँ कि वी वांट टू सेपरेट ऑक्सीजन फ्रॉम आवर एयर. जो एयर हमारा पूरा मिक्सचर है, द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, हम उसमें से ऑक्सीजन को सेपरेट करना चाहते हैं. तो अब हमको कैसे करना है ना. तो आ जाओ इसको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं. तो पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा हमको देखो. फर्स्ट स्टेप विल बी, द फर्स्ट स्टेप is what? The first step will be we will compress and cool the air by increasing pressure and decreasing temperature so that okay, yeah. So we will what we will do, we will compress and cool the air by increasing the pressure and decreasing the temperature so that it will change into liquid, and it will change into liquid. अच्छा, अब when it is being changed into liquid, what we will do, है ना. अब तो लिक्विड फॉर्म में आ गया, मिसिबल लिक्विड बन चुका है वो, है ना. तो जो मिसिबल लिक्विड बन गया है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग हीट कर देंगे, मींस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अब इसका हम लोग करेंगे. ओके, है ना. तो वी विल, द लिक्विड एयर इज अलाउड टू warm slowly in the fractionating column. and the step 3, अब जब हम लोग उसको वेपराइज करेंगे, उसको हीट करेंगे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, तो अलग अलग लेवल पे हमको, है ना, अलग अलग लेयर बना के वो हमको जो है वो अलग अलग लेवल्स पे हमको अलग अलग गैसेस जो है वो मिल जाएगा, है ना. सपोज इफ यू वांट टू सेपरेट ओनली द ऑक्सीजन, सिर्फ हमको ऑक्सीजन चाहिए, तो व्हाट वी विल हैव टू डू, we will have to separate two gases from it. The two gases, वो दोनों गैसेस, बाकी दोनों गैसेस को, आर्गन नाइट्रोजन को हमको बाहर निकालना पड़ेगा, है ना. ये पिक्चर तुम लोग देखो, ये पिक्चर सभी के बुक में जो है वो दिया हुआ है. दिस पिक्चर, इज इट सो? दिस पिक्चर, this one, you can see this picture, is it so? This picture. So at this point you can see this point, at this point you can see that the nitrogen and the argon gas is going out and only the liquid is remained, and that is obtained in the form of liquid oxygen. Is it so? तो this picture, इस पिक्चर को क्लियरली देखोगे तो सब कुछ तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, है ना. चलो बढ़िया. नेक्स्ट, in this way we will get the different components of air whichever we want. Okay, now moving towards the next method, that is the crystallization method. Next is the crystallization method. Crystallization, है ना, means the method of what? The method of preparing the crystals from an impure sample. Means
I have an impure sample, is it so? And suppose I have an impure solid, ठीक है, I have impure solid or a impure sample, and from that impure sample I will have to make, means I need to make a pure solid. So crystallization is used when it is used to make pure solids from impure sample. सैंपल मीन सपोज कर लो कि तुमको एक किसका मिक्सचर, मान लो तुम लोग को जैसे सॉल्ट वाटर से हम लोग क्या निकालते हैं, सॉल्ट वाटर से हम लोग क्या निकालते हैं, NaCl निकालते हैं ना। हमारा जो सॉल्ट वाटर होता है वहाँ से हम लोग क्या बनाते हैं, वहाँ से हम लोग NaCl बनाते हैं, NaCl का क्रिस्टल विच इज़ द सॉल्ट, है ना। तो सॉल्ट वाटर से हम लोग, तो तुम लोग को ये कॉमन सेंस तुम लोग के पास होगा आई थिंक कि ऑब्वियसली जब हम लोग सॉल्ट वाटर को लेते हैं हम लोग, है ना, तो जब सॉल्ट वाटर को लेते हैं हम लोग, तो सॉल्ट वाटर में तो सिर्फ सॉल्ट ही सॉल्ट नहीं होगा, उसमें तो और भी बहुत सारा इम्प्योरिटीज़ होगा। तो क्वेश्चन अराइजेस कि वो सारा इम्प्योरिटीज़ को कैसे रिमूव करेंगे हम, और रिमूव करने के बाद, है ना, व्हाट आर द प्रोसेसेस बाय विच वी कैन गेट द प्योर फॉर्म ऑफ द सॉल्ट, दैट इज द सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, है ना। दिस इज द मेन क्वेश्चन विच अराइजेस, है ना। तो देखो क्रिस्टलाइजेशन, तो सबसे पहले तुम लोग ये लिख लो कि वाई दिस इज यूज, तो मैंने लिख दिया ना कि क्रिस्टलाइजेशन, ये तुम लोग लिख लो, दिस इज यूज टू प्यूरिफाई द सॉलिड्स और टू मेक और टू गेट प्योर सॉलिड्स फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, है ना। टू मेक और टू गेट, ठीक है, टू मेक और टू गेट द सॉलिड्स। ओके, एन एग्जाम्पल में लिख लो, द salt from the salt water is extracted, the salt from the salt water is extracted by the process of crystallization. Okay, अभी crystallization का definition लिख लो तुम लोग, है ना, exact definition, what will be the exact definition of crystallization, write it. So crystallization is a process that separates a pure solid in the form of its crystals from a solution, okay, in the form of its crystal from a solution. Okay, अच्छा चलो, अभी देखो, one question may arise in your mind. हाँ, अगर तुम लोगों ने सही से समझा है क्रिस्टलाइजेशन को, और अभी तक जितना भी हम लोगों ने डिस्कस किया, अगर तुम उसको अच्छे तरीके से समझ चुके हो, तब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता था सॉल्ट वाटर का नाम सुन के कि सर सॉल्ट वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, एंड यू हैव taught us that the solid liquid mixture can be separated by the process of evaporation, है ना, हम लोग ये डिस्कस किए थे। तो तुम ये क्वेश्चन पूछ सकते थे कि सर इस केस में भी तो हम लोग इवापोरेशन कर सकते थे, है ना, पूछ सकते थे ना तुम लोग, ऑब्वियसली, मतलब तुम लोग नहीं पूछे, मैं ही पूछ ले रहा हूँ तुम लोग के तरफ से, है ना, कि सर हम तो सेम सॉल्ट वाटर के लिए तो हम इवापोरेशन करेंगे, है ना। मान लीजिए सॉल्ट वाटर के लिए नहीं, मैं बोलता हूँ कोई भी तुम्हारे पास इम्प्योर सैंपल है जो कि लिक्विड फॉर्म में है एंड या फिर एक्वस फॉर्म में है, एंड वहाँ से तुमको सॉलिड चाहिए, तो तुम बोलोगे सर आपने तो कहा था कि उस सारे केसेस में अगर सॉलिड लिक्विड होता है मिक्सचर तुम्हारे पास, तो तुम क्या करोगे, उसको इवापोरेशन करोगे एंड लिक्विड जो भी होगा उसका पार्ट वो इवापोरेट हो जाएगा एंड तुमको सॉलिड पार्ट तुम्हारा मिल जाएगा। आपने ये कहा था, तो फिर क्रिस्टलाइजेशन करने का क्या ज़रूरत है, ज़बरदस्ती मतलब मेहनत करने का क्या ज़रूरत है ना। ये क्वेश्चन तुम पूछ सकते हो, है ना। तो या दिस इज़ अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनता है कि हाँ ऐसा क्यों करेंगे हम लोग। तो देखो बहुत सारा रीज़न है कि मैं तुमको लिखवा देता हूँ, एक्चुअली इट विल बी बेटर कि तुम लोग लिख लो, कॉपी में ध्यान में रहेगा हमेशा। लिखो कि क्रिस्टलाइजेशन इज़ बेटर देन इवापोरेशन। क्रिस्टलाइजेशन एक सेकेंड अलग पॉइंट बनेगा इसका, क्रिस्टलाइजेशन इज़ बेटर देन इवापोरेशन बिकॉज, नंबर 1 पॉइंट लिखो, because number 1, some solid
some solid decompose or some solid decompose or get cad on heating to dryness, ठीक है, get cad on heating to dryness. एंड नंबर 2 लिखो कि some impurities may remain dissolved in the solution. Some impurities may remain dissolved in the solution even after filtration. मतलब फिल्टर कर दिए तुम, और फिल्टर करने के बाद तुम क्या बोले कि हाँ, फिल्टर करने के बाद जो बचता है हम इसका इवापोरेशन करवा देते हैं, तो इसमें जो भी थोड़ा बहुत वाटर वेपर्स है, ये सारा वाटर वेपर्स निकल जाएगा और हमको प्योर सॉलिड मिल जाएगा. लेकिन ये भी हो सकता है कि जो सॉलिड है तुम्हारा, उस सॉलिड में ऐसे कुछ पार्टिकल्स हैं अंदर जो कि फिल्ट्रेशन से वो पार्टिकल सेपरेट नहीं हुआ. अब अगर वो पार्टिकल सेपरेट नहीं हुआ फिल्ट्रेशन से, तो वो पार्टिकल्स तो सॉलिड के साथ ही रह गया. अब वो सॉलिड मिला, वो क्या प्योर सॉलिड मिलेगा तुमको? क्या लगता है तुमको? ऑब्वियसली नॉट, प्योर सॉलिड नहीं मिलेगा हमको. तो अगर हमको नहीं मिला तो फिर इतना मेहनत करके क्या फ़ायदा हुआ, है ना? तो वही बात मैं बता रहा हूँ कि सम इम्प्योरिटीज मे रिमेन डिजॉल्व इन द सोल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन. सो ऑन इवापोरेशन दिस कॉन्टेमिनेट द सॉलिड. तो जब इवापोरेशन करेंगे तो ये इम्प्योरिटीज सॉलिड को कॉन्टेमिनेट कर देगा. ऑन इवापोरेशन दीज कॉन्टेमिनेट द सॉलिड. ठीक है ना? ओके, चलो. तो इसीलिए हम लोग जनरली क्रिस्टलाइजेशन को यूज करते हैं रादर देन इवापोरेशन. ठीक है? ओके, अब इसका 2 एप्लीकेशंस तुम लोग को लिखना है. इसका 2 एप्लीकेशंस. ठीक है, इसका स्पेस छोड़ दो तुम लोग. ठीक है? और अब हम लोग आ जाते हैं एक एग्जाम्पल पे, जिस by that example we are going to understand the crystallization, that how crystallization takes place. ठीक है, एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं. ठीक है? सो प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल, हाउ टू ऑब्टेन दिस. ठीक है ना? हाउ टू ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, ठीक है ना? प्योर कॉपर सल्फेट CuSO4. ठीक है? ठीक है ना? चलो, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है बताओ? जब भी व्हेन वी आर परफॉर्मिंग दिस क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये तुम लोग बताओ. देखो, मैं बताता हूँ क्या करना पड़ेगा. सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? सबसे पहले वी विल टेक द फर्स्ट स्टेप इज दैट वी विल टेक द इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट. ओके, द स्टेप 1 इज टेक इम्प्योर, आई एम डिक्टेटिंग. ठीक है? टेक इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ चाइना डिश. चाइना डिश छोटा सा होता है, ग्लास का होता है बना हुआ. तुम लोग गूगल पे सर्च कर सकते हो चाइना डिश कैसा दिखता है. ओके, सेकेंड स्टेप लिखो. क्या करना है? सेकेंड स्टेप में लिखो डिसॉल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर. डिसॉल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर. ये हम लोग जस्ट एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं. एक नॉर्मल सॉलिड के लिए भी सारा स्टेप सेम ही रहने वाला है. हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं ताकि ज़्यादा क्लियर हो, है ना? अब ज़रूरी नहीं कि हमेशा कॉपर सल्फेट के बारे में लिख के आ जाओ तुम लोग. तुमसे पूछा मैग्नीशियम सल्फेट को कैसे करेंगे और तुम लोग कॉपर सल्फेट लिख के आ जाओ एग्जाम में, है ना? तो ऐसा मत करो, है ना? आई एम जस्ट गिविंग अ इजी एग्जाम्पल ताकि तुम लोग को ज़्यादा समझ में आए, है ना? चलो, तो स्टेप 2 इज क्या करेंगे? वी विल डिसॉल्व. थोड़ा सा उसमें हम लोग क्या मिलाएंगे? वाटर को मिला देंगे. ठीक है? अच्छा, थर्ड स्टेप में लिखो. स्टेप 3 वी विल फिल्टर द इम्प्योरिटीज आउट. स्टेप 3 फिल्ट्रेशन, है ना? वी विल फिल्टर द इम्प्योरिटीज. ओके. स्टेप 4 में क्या करना है? अभी फिल्ट्रेशन करने के बाद, फिल्ट्रेशन कर लिए तो जो सॉल्यूशन मेरे पास मिला, उस सॉल्यूशन को हमको क्या करना है?
है ना, इवापोरेशन करवाना है। इवापोरेट लिखो, स्टेप नंबर 4, इवापोरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, है ना, इवापोरेट द वाटर। अभी जो हम लोग सोल्यूशन बनाए हैं, तो हो सकता है कि द सॉल्ट विच यू हैव मिक्स्ड, वो सॉल्ट वाटर में सल्यूबल नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो हमको उसको सल्यूबल करना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो सल्यूबिलिटी इंक्रीज करने के लिए क्या करना है, टेम्परेचर बढ़ाना है, मतलब हीट करना है। तो कॉपर सल्फेट इज इनसॉल्यूबल इन वाटर, जान लो, कॉपर सल्फेट इज इनसॉल्यूबल। ये कहीं भी लिख लो कॉपी में, इंपॉर्टेंट है कि कॉपर सल्फेट इनसॉल्यूबल है। तो अगर हम लोग को वो इनसॉल्यूबल है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, उसको पहले सल्यूबल करना पड़ेगा। एंड सल्यूबल करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको हीट करना पड़ेगा, है ना। चलो, तो तुम्हारा 4th स्टेप होगा, इवापोरेट द वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टू मेक इट अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। इवापोरेट द वाटर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टू मेक इट सैचुरेटेड सोल्यूशन। नंबर 5 स्टेप क्या करना है, लिखो, कवर द सोल्यूशन विथ अ फिल्टर पेपर। अब जो सोल्यूशन तैयार हुआ हीट करने के बाद, सैचुरेटेड सोल्यूशन, इस सैचुरेटेड सोल्यूशन को एक फिल्टर पेपर से कवर कर देना है और उसको कुछ देर के लिए छोड़ देना है। ठीक है, उसको कुछ देर के लिए छोड़ देना है, उसको कुछ देर के लिए छोड़ देना है, उसको कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देना है। ठीक है, ओके। और उसके बाद जब वो जैसे कितने लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर ऑलमोस्ट, मान लो फॉर 1 डे तक उसको एकदम डिस्टर्ब नहीं करना है, छोड़ देना है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, जब वो तुम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे तो यू विल सी दैट उसमें का कुछ जो हेवी पार्टिकल्स होगा वो जो है वो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हेवी पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन कर जाएगा और ऊपर में कुछ लाइट पार्टिकल्स होगा, लाइट पार्टिकल्स, और नीचे होगा कुछ हैवी पार्टिकल्स, है ना, हैवी पार्टिकल्स। अभी स्लोली क्या करेंगे हम लोग, इस लाइट पार्टिकल्स को, ये सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में होगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, है ना। हम लोग इसको लेफ्ट आउट कर देंगे, लेफ्ट आउट। तो क्या बच गया, ये पोर्शन बच गया, और इस पोर्शन को हम लोग क्या करेंगे, वी विल ड्राई इट, वी विल ड्राई इट इन द सन। हम लोग इसको सन में, है ना, सनलाइट में इसको हम लोग इसको ड्राई कर देंगे, है ना। वी विल ड्राई इट इन द सन एंड वी कैन सी दैट वी हैव गॉट द क्रिस्टल्स ऑफ द कॉपर सल्फेट। समझ आ गया पूरा प्रोसेस, हाँ, समझ आ गया क्या करना है। तो सबसे पहले हमको जो इम्प्योर हमको सैंपल दिया है, उस इम्प्योर सैंपल को लेना है। उस इम्प्योर सैंपल को लेने के बाद सेकेंड स्टेप है, हम लोग को उसमें वाटर को मिक्स करना है। अच्छा, वाटर मिक्स करने के बाद वो जो एक सोल्यूशन रेडी होगा उसको फिल्टर कर लेना है। हो गया 3rd स्टेप कंप्लीट। फिल्टर करने के बाद जो मुझे फिल्ट्रेट मिलता है, हाँ, फिल्ट्रेशन के बाद 2 चीज़ मिलता है। जैसे फिल्ट्रेशन का एक बेस्ट एग्जांपल है, चाय बनाते हैं जब हम लोग, तो चाय को हम लोग, टी को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे छान लेते हैं। तो जो हमको चाय पत्ती मिल जाता है और चाय मिल जाता है, तो दैट चाय पत्ती विच इज़ बीइंग फिल्टर्ड, वो मेरा क्या बोलते हैं, उसको हम लोग रेसिड्यू बोलते हैं। और जो चाय है वो मेरा फिल्ट्रेट होता है ना। तो फिल्ट्रेशन से हमको 2 चीज़ मिलता है, वन इज रेसिड्यू एंड द अदर इज फिल्ट्रेट, है ना। तो जो हमारा चाय पत्ती होता है, जो बच जाता है ऊपर, दैट इज द रेसिड्यू, जिसको हम लोग फेंक देते हैं, और दिस इज माई फिल्ट्रेट, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे। फिल्ट्रेशन से जो मेरा इम्प्योरिटीज़ निकला, दैट विल बी माई रेसिड्यू, उसको फेंक दिए। अब वहाँ से जो हमको सोल्यूशन मिला है ना, उस सोल्यूशन को हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे थोड़ा सा, ताकि वो एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए। कैसा सोल्यूशन बन जाए, सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए, है ना, अनसैचुरेटेड नहीं, सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए, जिसमें पार्टिकल्स जो है, सैचुरेटेड में क्या होता है, पार्टिकल्स को और हम लोग ऐड नहीं कर सकते, है ना। ठीक है, तो हम लोग को एक सैचुरेटेड सोल्यूशन मिल जाए, इसलिए हम लोग उसको हीट करेंगे। आफ्टर हीटिंग हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग फिल्टर पेपर से कवर कर देंगे एंड वी विल लीव इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर ऑलमोस्ट 1 डे। एंड आफ्टर दैट
उसका जो लाइटर पार्टिकल्स और हेवी पार्टिकल्स दिखेगा, लाइटर पार्टिकल्स को बाहर निकाल देंगे, फेंक देंगे, एंड हेवियर पार्टिकल्स को हम लोग सन में ड्राई करवा देंगे, तो हम लोग देखेंगे कि हमको क्रिस्टल कॉपर सल्फेट का मिल गया है। अंडरस्टूड? सो दिस इज व्हाट इज द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ठीक है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आता है, बता दिया है ना। चलो ओके, नाउ नेक्स्ट है तुम्हारा क्रिस्टलाइजेशन से ही मिलता जुलता एक प्रोसेस है जो तुम लोग क्लास 7 में पढ़े थे, फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, है ना, कि किस तरीके से कॉर्पोरेशन का जो वाटर हमारे पास पहुंचता है टैंक से, बड़े बड़े टैंक से, वो हमारे घर तक कैसे पहुंचता है। उसमें हम लोग पढ़े थे ना कि सेडिमेंटेशन होता है, डिकेंटेशन होता है, फिल्ट्रेशन टैंक होता है, फिर वहाँ से क्लोरीनेशन किया जाता है वाटर का, एंड फिर वो क्लोरीनेटेड वाटर हमारे घरों में आता है ना। तो ये भी तुम लोगों का एक पार्ट है सिलेबस का, तुम लोग पढ़ लेना, इनकेस समझ नहीं आता है तो पूछ लेना, ठीक है, पक्का पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है। चलो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है मैटर के बारे में, प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, है ना। तो अभी हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो व्हाट आर दिस प्रॉपर्टीज, देख लो, मैं तुमको बता देता हूँ। जनरली मैं तुम लोग के साथ डिस्कशन करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तुम लोगों को ये सब बात पहले भी पढ़ा दिया है ना, कि व्हाट आर मेटल्स, व्हाट आर नॉन मेटल्स, व्हाट इज़ अ मिक्सचर, व्हाट इज़ अ कंपाउंड, व्हाट इज़ एलिमेंट, बताया है ना मैंने पहले भी, है ना, सब कुछ बता दिया है। प्योर मैटर, प्योर सब्सटेंस होता है, मिक्सचर होता है, मिक्सचर में होमोजेनस होता है, हेट्रोजेनस होता है, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है, सब कुछ बता दिया है। तो वही सब फर्दर तुम्हारे बुक में डिस्कशन कर रहा है, और उसके बाद जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ बता रहा है, जो प्रॉपर्टीज़ तुम लोग अपने कॉपी में लिख लेना, दिस प्रॉपर्टीज, दिस वन, दिस पेज, ये प्रॉपर्टीज़ अपने कॉपी में तुम लोग लिख लेना, दिस प्रॉपर्टी, दिस द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट, द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स, दिस वन, है ना, इसको पूरा मार्क कर लो, दिस वन, ये पूरा, दिस होल थिंग, दिस, इसको पूरा तुम लोग को लिख लेना है अपने कॉपी में, है ना, अच्छे से हेडिंग देखिए, दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, इस तरीके से, और कुछ एक्सेप्शंस भी यहाँ पे दिया हुआ है, उस एक्सेप्शन को तुम लोग लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली ज़्यादा कुछ डिस्कशन का नहीं है। एंड दिस टेबल शुड बी in your copy, this table should be in your copy always, the differences between mixtures and compound, ये भी तुम्हारे कॉपी में होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा है जो हम लोग को करना है, ठीक है, समझ गए, क्लियर है, चलो ठीक है, ये सब क्लियर हो गया। अभी हमारा सेपरेशन में एक मेथड बच जाता है, अभी भी हमारे पास एक मेथड है ऐसा, जो कि हम लोगों ने अभी तक जो है वो डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। इतना जल्दी, ओके, सो वी विल डिस्कस दैट मेथड, ओके, एंड द नेम ऑफ द मेथड इज क्रोमैटोग्राफी, द नेम ऑफ द मेथड इज क्रोमैटोग्राफी, ओके। So we have the method of your chromatography, ठीक है। तो chromatography is not a very big deal, okay, chromatography is not a very big deal। तो उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम लोग को जानना चाहिए, तो वो तुम लोग लिख लो फटाफट, ठीक है। chromatography में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है which you should know, तो उसको तुम लोग को लिख लेना चाहिए, अंडरस्टूड। चलो लिख लो, हेडिंग डाल दो chromatography। अच्छा देखो, chromatography का डेफिनेशन लिख लो कि the process of separation of the components, the process of separation of the components of a mixture, the process of separation of components of a mixture is known as chromatography, is known as chromatography, okay। चलो ठीक है। अभी क्रोमेटोग्राफी से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे, क्रोमेटोग्राफी से एक ही क्वेश्चन आता है कि जो हम लोग एक डाई यूज़ करते हैं ना, है ना, एक इंक जो यूज़ करते हैं, ब्लैक कलर का इंक या फिर ब्लू कलर का इंक, तो वो जो ब्लू कलर का या फिर ब्लैक कलर का जो भी इंक है, तो वो इंक जो बना है तो वो क्या सिर्फ ब्लू कलर से ही मिलके बना है, तो वो पूरा ब्लू है, या फिर जो ब्लैक कलर का इंक है या फिर जो मेरा रेड कलर का इंक है, वो क्या सिर्फ रेड कलर से ही मिलके बना है, ऐसा नहीं है, है ना। तो दैट रेड कलर, वो जो रेड डाई है,
वो सिर्फ रेड से ही मिलके नहीं बना है, डिफरेंट अलग अलग कंपोनेंट से मिलके बना है। एंड वो अलग अलग कंपोनेंट्स कौन कौन से कंपोनेंट्स है, अगर उसको हम लोग जानना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू नो, तो हम लोग को जाना पड़ेगा विद द मेथड ऑफ क्रोमेटोग्राफी। एंड देयर आर वेरियस टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी विच आर बीइंग परफॉर्म। हम लोग जो क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे दैट विल बी द पेपर क्रोमेटोग्राफी। हम लोग जो क्रोमेटोग्राफी पढ़ने वाले हैं दैट इज द पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। चलो अभी क्रोमेटोग्राफी में देखो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है। देयर आर टू इंपॉर्टेंट टर्म्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो दोनों टर्म्स को लिख लो। एक टर्म होता है हमारा स्टेशनरी फेज एंड देयर इज वन टर्म विच इज नोन एज मोबाइल फेज, PHASE, मोबाइल फेज, स्टेशनरी फेज। देयर आर टू टर्म्स रिलेटेड टू द प्रोसेस क्रोमेटोग्राफी। जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ, समझाने वाला चीज़ ही बता रहा हूँ। देयर आर टू फेजेस, वन इज द स्टेशनरी फेज, वन इज द मोबाइल फेज। अभी देखो स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज क्या होता है, ठीक है, ये बात मैं तुमको थोड़ा सा बता देता हूँ। मोबाइल फेज क्या है? मोबाइल फेज इज जनरली अ सोल्यूशन जिसको हम लोग लेंगे। इसका काम हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग एक पीस ऑफ पेपर लेते हैं, उस पीस ऑफ पेपर में तुम लोग बुक में देखना कि एक छोटा सा डॉट बना देते हैं। ठीक है, कौन सा किस चीज़ का डॉट है? वो इंक का डॉट है। एक हम लोग का जो भी इंक है, ब्लैक इंक, ब्लू इंक, रेड इंक, उसका एक डॉट दे देंगे। डॉट दे के उस पेपर को हम लोग उस डॉट के लेवल पे, जैसे ये है मेरा पेपर, ये डॉट है, डॉट के लेवल पे ऐसे हम लोग उस सोल्यूशन में डिप कर देंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तो जिस सोल्यूशन में हम लोग डिप करते हैं, है ना, जिस सोल्यूशन में हम लोग डिप करते हैं, वो जो सोल्यूशन होता है दैट सोल्यूशन इज नोन एज द मोबाइल फेज। दैट सोल्यूशन इज नोन एज द मोबाइल फेज। ओके, एंड जो इंक होता है हमारा दैट इज नोन एज द स्टेशनरी फेज। सो दैट सोल्यूशन जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं, जिस सोल्यूशन में हम लोग उसको डिप करेंगे, दैट सोल्यूशन इज नोन एज द मोबाइल फेज। क्यों मोबाइल फेज? देखो अब जब हम पेपर को डिप कर दिए तो जो सोल्यूशन में डिप किए वो सोल्यूशन का में जो भी वाटर लिक्विड है वो लिक्विड धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर चढ़ेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इज इट सो? तो चूंकि वो मूव कर रहा है तो इसीलिए उस सोल्यूशन का नाम हम लोग देते हैं मोबाइल फेज। एंड जो इंक हम लोग डालते हैं दैट इज नोन एज द व्हाट, दैट इज नोन एज द स्टेशनरी फेज। अंडरस्टूड? तो ये सारा कुछ टर्म्स है जिसको हम लोग को जानना पड़ता है वाइल रीडिंग द क्रोमेटोग्राफी। स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज, दोनों का डेफिनेशन तुम लोग लिख लेना, बुक में दिया हुआ है। इनकेस नहीं है तो हमसे मांग लेना तुम लोग, नहीं तो गूगल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमसे मांग लेना, मैं दे दूंगा। ठीक है, मैं ही डिक्टेट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारा काम हम लोग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लो तुम लोग क्रोमेटोग्राफी में फटाफट, that chromatography is the technique which is used for the separation of, chromatography is the technique which is used for the separation of solutes which are dissolved in the solvent. Separation of the solute which are dissolved in the solvent. Used for the separation of solute which are dissolved in the solvent. Understood? तो ये है, this is all about the process chromatography. This is all about the separation of pictures. This is all about this chapter 2. अंडरस्टूड? सो आज हमारा चैप्टर जो है वो लिटरली खत्म हो गया। इन केस कोई डाउट है तो तुम लोग कभी भी हमको बता सकते हो। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल गिव यू सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। पढ़ लेना, सब कुछ अच्छे से क्लियर कर लेना, एंड टिल देन कीप स्टडिंग एंड बी सेफ, बी एट होम। ओके, थैंक यू।